میٹرک میں فیل ہونے پر یعقوب صاحب نے پہلی بار اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا اور اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بیٹے سے یہ تھپڑ برداشت نہ ہوا اور وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں اپنے بیٹے کے غم میں ہر روز روتی تھی تو یعقوب صاحب یہی کہتے تھے کہ فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کمینہ واپس آ جائے گا۔ مگر کئی دنوں تک بیٹا واپس نہ آیا۔ اخبارات میں اشتہار دیے گئے اور مساجد میں گمشدگی کے اعلانات کیے گئے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب ایک ماہ گزر گیا تب باپ کو تشویش ہونے لگی اور مختلف شہروں میں جا کر بیٹے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں بیمار رہنے لگی۔ 1 سال کا عرصہ بیت گیا لیکن بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ 1 سال بعد جنگل سے کسی نوجوان کی جلی ہوئی لاش ملی جس کی شناخت ممکن نہیں تھی۔ یعقوب صاحب نے اس کو اپنے بیٹے کی لاش ہی سمجھی اور اسے قبرستان میں دفنا دیا۔ 20 سال بعد یعقوب صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں گئے اور بیرے سے کہا کہ اس ہوٹل کا سب سے سستا ترین اور کم قیمت کھانا لے کر آؤ۔ بیرا اس بات پہ بزرگ کی بات سن کر حیران ہوا اور اس نے جا کر مینیجر کو بتایا کہ ہمارے ہوٹل میں ایک ایسا بزرگ جوڑا آیا ہے جو سب سے کم قیمت کھانا مانگ رہا ہے۔ مینیجر نے جلدی سے ایک ایسا کام کیا کہ آج میٹرک کے امتحان کے رزلٹ تھا اور رزلٹ معلوم کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے پیپر ٹھیک نہیں ہوئے، اور میں اس حقیقت سے بھی واقف تھا کہ میرے معلوم کرنے سے پہلے ہی ابا جان نے میرا رزلٹ معلوم کر لیا ہوگا، کیونکہ مجھ سے زیادہ تو اسے اس رزلٹ کا انتظار تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے میری ماں بیمار تھی اور اس کا ٹھیک سے علاج نہیں ہو رہا تھا۔ ابا جان ماں پر پورا پیسہ لگا چکے تھے لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی بہتری نہیں آئی۔ میں تو میٹرک میں اچھے نمبر لینا چاہتا تھا لیکن اب اماں کی وجہ سے مجھ سے پڑھائی نہیں ہو رہی تھی۔ ساری رات ماں درد کی وجہ سے تڑپتی رہتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اس کے معدے میں ایک بہت بڑی پتھری بتائی تھی اور اس کا آپریشن بتایا تھا، لیکن آپریشن کے لیے اخراجات بالکل نہیں تھے۔ بابا جان صرف دوائیوں پر ہی گزارا کر رہے تھے کیونکہ کچھ ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ ادویات کے ذریعے یہ پتھری ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ آخری راستہ آپریشن ہی ہے۔ میں رزلٹ چیک کرنے گیا تھا لیکن بغیر رزلٹ چیک کیے ہی واپس گھر لوٹ آیا۔ دل میں یہ سوچ کر آ رہا تھا کہ اگر پاس ہوا تو ابا کا موڈ اچھا ہوگا، وہ مجھے خوش آمدید کہیں گے، اور اگر فیل ہوا تو ابا کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ مجھے سخت محنت کرنے کا مشورہ دیں گے اور میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ یہی سوچ کر میں گھر کی دہلیز میں داخل ہوا تو ابا غصے میں تھے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میں فیل ہو چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے معافی مانگتا اور ان سے یہ وعدہ کرتا کہ اگلے سال میں بہترین نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا، میں ماں کی بیماری کی وجہ سے اپنی تعلیم پر پوری طرح توجہ نہ دے پایا۔ یہ سب میں اپنے باپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن ابا نے مجھے اس بات کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف آنے لگے۔ میرا دل خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ اب ابا نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ کچھ لمحوں تک تو میرا سر چکرا سا گیا تھا اور مجھے کسی چیز کا ہوش تک نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا کہ میں نیچے زمین پر لیٹا ہوا ہوں۔ ابا اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے جبکہ میری بیمار ماں چارپائی سے اٹھ کر میری طرف آ رہی تھی۔ وہ ابا کو ملامت کر رہی تھی کہ میرے لال کو کیوں مارا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ ماں میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میری بلائیں لے رہی تھی۔ ماں کو اس بات کا بہت غم تھا کہ ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر شاید ماں سے زیادہ مجھے اس بات کا غم تھا کہ ابا نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا، کیونکہ وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں پچھلے کئی ماہ سے اس گھر میں مسائل چل رہے ہیں۔ شاید میں ایک ہاسٹل میں رہتا تو آج یہ نتیجہ نہ آتا۔ خیر، ابا کے اس رویے کی وجہ سے میں مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا اور اس وقت گھر سے باہر چل پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کہاں ہے، لیکن یہ ضرور جانتا تھا کہ اگلے کئی دنوں تک میں گھر واپس نہیں آ سکتا۔ ابا نے جو تھپڑ مجھے مارا تھا دراصل یہ میرے ضمیر پر تھپڑ تھا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب میں ایسا تو نالائق نہیں تھا اب بس سے کسی قسم کا بدلہ لیتا، لیکن میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ اب گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ جب شام ہونے لگی تو میرا دل بہت گھبرانے لگا کیونکہ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ مغرب کی اذان کے وقت بھی میں گھر سے باہر تھا، جبکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ابا کی طرف سے مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ مغرب کی اذان کے وقت تمہارا گھر میں ہونا لازمی ہے، اور میں ابا کے اس حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ جامع مسجد میں گیا اور اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد تسبیحات پڑھنے کے لیے مسجد میں ہی موجود رہا۔
हमाम साहब बार बार मुझे देख रहे थे, शायद इसलिए कि मैं अजनबी था। वो जानते थे कि मैं इस महल्ले का नहीं। इसके बाद इशा की अजान तक मैं इधर ही मौजूद रहा। इशा की बाद जमात नमाज अदा की और सब लोग घरों को वापस लौट गए तो इमाम साहब मेरे पास आए और कहा, बेटा क्या मुसाफिर हो या फिर घर से रूठ कर आए हो। इस वक्त मैं इमाम साहब को हकीकत नहीं बता सकता था, लिहाजा मैंने यही कहा कि इमाम साहब मैं मुसाफिर हूँ, सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। इमाम साहब ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँ। तो मैंने मना कर दिया और झूठ बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ। मगर वो एक तजर्बाकार इंसान थे, इसने मेरी आंखों और मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। मैं कितना भूखा हूँ, लिहाजा घर की तरफ रवाना हुए। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आए थे। खाने को देखते ही मैं इस पर टूट पड़ा। खाना खाकर मैंने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और यूं घर से बाहर पहली रात मैंने मस्जिद में ही गुजारी। दूसरी तरफ याकूब साहब अपने बेटे के लिए इतने फिक्रमंद नहीं थे, लेकिन याकूब साहब की बीवी अपने बेटे जफ़र के लिए तड़प रही थी। वो बार बार अपने शोहर से यही कह रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरा बेटा पहली बार नाकाम हुआ था और इस नाकामी पर आपने उसका साथ ना दिया, जबकि इसे आपके साथ की बहुत ज़रूरत थी। याकूब साहब बार बार अपनी बीवी से यही कह रहे थे कि मुझे ज़फ़र से बहुत उम्मीदें थीं। इसने भी मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं तो यही समझ रहा था कि ये क्लास में टॉप करेगा, ज़िले में पोजीशन हासिल करेगा, मगर ऐसा ना हो सका। चलो पोजीशन हासिल नहीं की, लेकिन कम अज़ कम पास तो हो जाता। लेकिन ये कम वक्त तो पास तक ना हुआ। तुम जानती हो कि तुम्हारी बीमारी की वजह से पिछले कई महीने से मैं कितना डिस्टर्ब था। तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मैंने लोगों से कर्जे मांग रहा था। इन हालात में कम अज़ कम मुझे अपने बेटे की तरफ से ये खुशी तो नसीब होती, लेकिन अफसोस कि बेटे ने मुझे ये खुशी भी ना दी। खैर मियाँ बीवी की ये तकरार जारी रही। माँ बार बार अपने शोहर से यही कह रही थी कि मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, रात को इसने कुछ खाया भी है या नहीं। मगर याकूब साहब अभी भी मुतमिन थे और अपनी बीवी से यही कह रहे थे कि अपने किसी दोस्त के घर ठहरा होगा, तुम्हें परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सुबह देखना कमीना वापस लौट आएगा घर। मगर सुबह की शाम हुई, दिन गुजरते गए, लेकिन जफ़र वापस ना आया। मस्जिद में फजर की अजान सुनी तो नींद से बेदार हुआ। सुबह की नमाज अदा की और इसके बाद वहाँ से जाने लगा। इमाम साहब ने मुझे रोका और कहने लगे कि बेटा नाश्ता करके ही जाना। मैंने इमाम साहब से माजरत की कि मुझे अपनी मंजिल की तरफ जाना है, हालांकि मैं खुद नहीं जानता था कि मेरी मंजिल क्या है। मगर इमाम साहब ने ज़िद की और मुझे सुबह तक रोके रखा। सुबह नाश्ता करने के बाद मैं मस्जिद से रवाना हुआ। इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और इससे ये भी कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे अपनी मंजिल मिल जाए। मेरी कोशिश थी कि कहीं से मुझे कोई मुलाजमत या फिर दिहाड़ी मिल जाए ताकि किसी से भीख मांग कर खाना ना खाना पड़े। मज़दूरों के एक अड्डे पर जाकर खड़ा हो गया और इस इंतज़ार में था कि कोई शख्स जिसको किसी मज़दूर की ज़रूरत होगी तो यहाँ से ले जाएगा। सामने ही एक वर्कशॉप थी और वर्कशॉप का मालिक मुझे मुसलसल देख रहा था। इसके बाद वो मेरे करीब आया और कहा कि ज़रूरतमंद हो। मैंने कहा जी हाँ, मज़दूरी के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ ताकि कोई काम मिल जाए। फिर वो मुझसे कहने लगा, मैं वर्कशॉप का मालिक हूँ, मेरे लिए काम करोगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसने मुझे अपने वर्कशॉप पर रख लिया और कहा कि 2 वक्त की रोटी के अलावा माहाना 15,000 रुपये तुम्हारी तनख्वाह होगी। मुझे काफ़ी खुशी हुई क्योंकि इससे बेहतर मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। ये मेरे लिए एक नया शहर था और तमाम लोग ही मेरे लिए अजनबी थे। मैं अपना शहर ही छोड़ आया था ताकि मेरा बाप मुझे तलाश ना कर पाए। मैं नहीं जानता था कि अब्बा जान ने मुझे तलाश करने के लिए क्या क्या काम किए। क्या पता इसने मुझे तलाश करने के लिए अखबार में इश्तिहार भी दिए होंगे, मसाजिद में ऐलानात भी करवाए होंगे, मगर मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मेरी जुदाई के बाद अब्बा जान अपने किए पर पछता रहे होंगे या नहीं। लेकिन एक वाहिद माँ थी जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था। माँ मुझे बहुत याद आ रही थी। कभी कभी तो मेरे दिल में आया कि भागता हुआ अपनी माँ के पास चला जाऊँ, लेकिन फिर जब अब्बा का ख्याल दिल में आता तो अपने इरादे से बाज आ जाता। वर्कशॉप पर मुझे 1 महीना हो चुका था और मैंने खुद अपने मुंह से तनख्वाह न मांगी, यही सोच के कि मालिक खुद मुझे तनख्वाह देंगे। लेकिन अब तो 40 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक इसने मुझे तनख्वाह न दी। तब मैंने मालिक से यही कहा कि 1 माह से ऊपर हो चुका है, लेकिन आपने मुझे तनख्वाह नहीं दी। मालिक ने यही कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ वजूहात की वजह से मैं तुम्हें वक्त पर तनख्वाह ना दे पाया, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगले महीने मैं तुम्हें 2 माह के 30,000 रुपये दूंगा।
मैं नहीं जानता था कि मालिक के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं मेहनत से काम करता रहा। वर्कशॉप पर जितना वो काम मुझे कहते, मैं इसके हर हुक्म को बजा लाता। पूरे 8 घंटे इसके हाँ मैं नौकरी करता और वर्कशॉप बंद होने तक मैं इसकी दुकान पर काम करता रहता। कभी किसी काम में कोताही नहीं की और ना ही इसे किसी किस्म की शिकायत का मौका दिया। जब 2 माह मुकम्मल हुए तब मैंने तनख्वाह का मुतालबा किया। इस बार मालिक ने साफ अल्फाज में कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आगे तुम्हारी मर्जी। अगर मज़ीद मेरे साथ यहाँ काम करना चाहती हो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं इस वर्कशॉप के मालिक का इरादा समझ चुका था। वो महज 2 वक्त की रोटी की खातिर मुझसे काम ले रहा था, जबकि मैं शुरू से इस बात से आगाह नहीं था। लिहाजा मैंने वहाँ से जाने का ही इरादा कर लिया। बस जाते वक्त इससे कुछ पैसे मैंने मांग लिए, ये कहकर कि मेरे पास बस का किराया नहीं और मैं घर जाना चाहता हूँ। इसने मुझे बस का किराया दिया और मैं मुसाफिर बस के इंतज़ार में खड़ा हो गया। दरअसल मैं घर नहीं बल्कि शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर जा रहा था। ये शहर मुझे बिल्कुल रास नहीं आया था। मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। एक मुसाफिर बस में सवार हुआ। मेरे साथ एक आदमी जिसकी उम्र लगभग 50 बरस थी, वो आकर बैठ गया। ऐसे ही मुझसे बातें पूछने लगा। मैंने इसे हकीकत तो ना बताई, बस इतना बताया कि गरीब माँ बाप हैं जिनकी वजह से मैं मजदूरी के लिए शहर जा रहा हूँ। वो मेरी तमाम तफसीलात जानकर मुझसे कहने लगा, बेटा शहर में जाकर धक्के खाने से बेहतर है तुम मेरे साथ आओ। मेरी काफ़ी ज़मीनें हैं और मुझे एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम्हें मैं माकूल तनख्वाह दूंगा और इसके अलावा खाना भी अच्छा मिलेगा। रहायश का भी कोई मसला नहीं। तुम्हारी शक्ल को देखकर ऐसे महसूस होता है कि तुम काफ़ी बीमार हो। शहर में मज़ीद रहना तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। मैं पहले ही वर्कशॉप के मालिक से धोखा खा चुका था और मज़ीद धोखा नहीं खाना चाहता था, मगर मुझे इसकी बातें सच मालूम होने लगी। इसका लहजा ही कुछ ऐसा था कि मैं इस किसी की बात को झुठला ना पाया। सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुझे मुतासर किया वो ये थी कि जब इसने कहा, बेटा मेरी शादी को 25 साल गुजर चुके हैं लेकिन मेरी औलाद नहीं। तो मुझे एक अच्छे ख़ानदान से लगते हो और इसके अलावा ज़रूरतमंद भी हो, लिहाजा मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। मैंने शहर जाने का इरादा तर्क किया और अपनी मंजिल तब्दील करके अब मैं इस शख्स के साथ इसके गांव जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी इसके गांव में पहुंची। हम दोनों गाड़ी से उतरे। ये एक ऐसी सड़क थी जिसके पास ही एक जंगल था। वो शख्स जिसका नाम दीनू था, मैंने इससे पूछा कि दीनू चाचा, हम लोग जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो वो कहने लगा, बेटा जंगल के इस पार मेरा गांव आबाद है, लिहाजा जंगल से ही गुजरना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। ये एक बेज़रर सा जंगल है जिसमें किसी किस्म के खतरनाक जानवर नहीं रहते। हम जंगल के दरमियान चलते जा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे आने वाला ख़तरा महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो गलत है। ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कोई न कोई धोखा ज़रूर हो रहा है। जंगल के इस पार एक दरिया था और एक कश्ती वहाँ किनारे पर खड़ी थी। इस कश्ती में कुछ लोग भी सवार थे जो शक्ल से बहुत खतरनाक महसूस हो रहे थे। बड़ी बड़ी मूंछें थी और इनके हाथों में असला भी मौजूद था। मेरे पूछने पर चचा दीनू ने बताया कि ये लोग गांव के ही बासी हैं और ये कश्ती में हमारे साथ सफ़र करेंगे। मैं और चचा दीन उन्हों इन लोगों के साथ कश्ती में सवार हुए। दरिया में कश्ती रवां दवां थी और वो लोग एक दूसरे को बड़े गौर से देख रहे थे। वो इशारों इशारों में चचा दीनू से कुछ पूछ रहे थे और चचा दीनू इनको बाकायदा जवाब दे रहा था, मगर ये सब बातें इशारों में हो रही थी जिसकी मुझे समझ नहीं थी। कश्ती से उतरकर चचा दीनू मुझे अपने घर ले जा रहा था, लेकिन हैरत की ये बात थी कि वो लोग भी हमारे साथ ही आ रहे थे। रहाइश पर पहुंचने पर ही मुझे पता चला कि मैं तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, क्योंकि ये डाकुओं का एक गिरोह था जो कि मुझे अपने सरदार के पास ले गए थे। इस सरदार ने दीनू को शाबाश दी और कहा कि बहुत बड़ा काम किया, एक आदमी हमारे गैंग में शामिल किया। सरदार ने मुझे साफ अल्फाज में कहा कि जिस जगह तुम पहुंच चुके हो, यहाँ से अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक ये कि दिल से ही हमारे गैंग में शमूलियत इख्तियार कर लो, दूसरा रास्ता मौत है। अब ये तुम पर है कि तुम किस रास्ते पर चलोगे। तुम एक ज़रूरतमंद दिखाई देते हो, लिहाजा हमारे साथ काम करो। अपने ख़ानदान की कफालत कर सकते हो और इनकी तकदीर बदल सकते हो। मेरे पास कहने के लिए कुछ अल्फाज नहीं थे। मैं जानता था कि अब ये एक ऐसी कैद है जहाँ से इतनी जल्दी तो मुझे रहाई नहीं मिल सकती। लिहाजा मैंने इनसे यही कहा कि मैं दिल से आप लोगों की गैंग में शामिल होता हूँ। उन्होंने मुझे मुबारकबाद पेश किया और अपनी गैंग में शामिल कर लिया।
1 साल का सा बीत चुका था, लेकिन मुझे वहाँ से फरार का मौका ना मिला क्योंकि वो लोग मुझ पर कड़ी नज़र रखे हुए थे। 1 साल के अरसे के दौरान वो कई लोग अपनी रहाइश पर लेकर आए जिनको वो अगवा करते थे और फिर इनके ख़ानदान से तवान वसूल करते थे। कई ऐसे मजबूर लोगों को मैंने देखा जिनको वो पकड़ कर लेकर आए और फिर भारी कीमत वसूल करके इनको आज़ाद किया था। कई ऐसे लोग भी पकड़ कर लाए जिनके घर वाले पैसे देने से इनकार कर देते थे वो और फिर इनको बेदर्दी से मार कर दरिया में फेंक देते थे। 1 साल तक मैं घर वापस ना आया तो अब्बा जान ने यही समझा कि मेरा बेटा अब कभी भी वापस नहीं आएगा या फिर खुदकुशी करके इसने अपनी जान दे दी। माँ को अब भी मेरे जीने की उम्मीद थी। वो बार बार अब्बा से यही कहती थी कि एक न एक दिन मेरा बेटा लौट कर ज़रूर वापस आएगा। अचानक टीवी पर खबर चली कि साथ वाले जंगल में एक नौजवान की जली हुई लाश मिली है। अब्बा खबर सुनकर फौरन जयकुआ पर पहुंचे। इस लाश की शिनाख्त बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब्बा ने इंतज़ामिया को इस बात का यकीन दिलाया कि ये लाश मेरे बेटे की है। मेरा बेटा 1 साल से गुमशुदा है, किसी को नहीं मिल सका। हो ना हो ये मेरा जफ़र ही है। अब्बा इस लाश को अपने घर ले आया और फिर कब्रिस्तान में दफना दिया। माँ की भी उम्मीद कि मेरा जफ़र अभी जिंदा है, वो भी अब मर चुकी थी। कुछ दिन बाद एक ऐसे शख्स को डाकू पकड़ कर लाए जो कि बहुत बड़े रेस्टोरेंट का मालिक था। इसका नाम शेख हबीब था। वो करोड़पति शख्स था। उन्होंने शेख हबीब के घर वालों से 50 करोड़ की डिमांड की थी जो कि बहुत ज़्यादा थी। जब फ़ोन पर शेख साहब की मुलाकात इनके घर वालों से कराई गई तो शेख साहब ने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया कि इतनी रकम मेरे लिए ही नहीं देनी। इतनी रकम अदा करने के लिए मुझे अपनी सारी जायदाद हत्ता कि घर भी फरोख्त करना पड़ेगा। मुझे शेख साहब की रखवाली पर मामूर किया गया जबकि बाकी लोग दरिया के किनारे महफिल अटेंड कर रहे थे। अब वो मुझ पर एतमाद करते थे और कभी ना सोचा था कि ज़फ़र हमें धोखा दे सकता है। लेकिन मैं तो मौके की तलाश में था और आज वो मौका मुझे मिल रहा था। अच्छा, मैं शेख साहब को वहाँ से आज़ाद करके जंगल के मुखालिफ सिमत में भागना शुरू हुआ। जब तक इनको पता चलता मैं शेख साहब को लेकर इनके घर आ चुका था। शेख साहब अक्सर मुझसे कहा करते कि बेटा तूने मुझे ख़रीद लिया, मैं तुम्हारा वो एहसान जो तूने मुझ पे किया कभी नहीं चुका पाऊँगा। शेख साहब की इकलौती बेटी थी जिससे मेरी शादी हुई। आज मैं शेख साहब का कारोबार इनका रेस्टोरेंट संभाल रहा हूँ। शेख साहब की वफ़ात पाए 8 बरस हो चुके थे। एक दिन मैं अपने होटल पर ही मौजूद था। मैं ऑफिस में बैठा था जबकि खिड़की में मैंने देखा कि अब्बा जान माँ को लेकर इस होटल पर आए थे। अब्बा जान ने बेरे से कहा कि इस होटल का सस्ता तरीन खाना लेकर आओ जो सबसे कम कीमत हो। मैंने बेरे को हाथ का इशारा किया और अपने पास बुलाया और फिर इससे पूछा। बेरो ने मुझे सारी तफसील बताई। मैंने कहा कि इनको इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा खाना दो, कीमत मेरी तरफ से अदा हो जाएगी। जब बिल देने की बारी आई तो बूढ़े शख्स ने बेरे से पूछा कि बेटा कीमत क्या है, जिस पर बेरे ने मेरे बाप को बताया कि खाने की कीमत अदा हो चुकी है। अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन से मुझे मिला दिया। मैं अपने अब्बाई घर गया था लेकिन वहाँ ताला लगा पड़ा था। पड़ोसियों को इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे वालिदैन कहाँ गए, ना ही मुझे इस बात की कोई खबर थी। काफ़ी अरसे तक मैं वालिदैन को तलाश करता रहा लेकिन वो ना मिल सके। लेकिन आज किस्मत इनको मेरे ही होटल पर ले आई और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो खाना खाकर होटल से बाहर निकले तो मैंने इनका पीछा किया। दोनों एक किराए के मकान में रहते थे। वो जैसे ही किराए के मकान में दाखिल हुए तो मैं भी इनके पीछे आ गया। आज 20 साल बाद मैं अपने वालिदैन से मिल रहा था। इनको सलामत देखकर मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा खुशी मेरे वालिदैन को थी जो मुझे काफ़ी अरसे तक तलाश करते रहे और आखिरकार मुर्दा समझकर दफना दिया। मेरा बाप बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहा था लेकिन मैं अपने बाप के हाथों को चूम रहा था और इससे यही कह रहा था कि बाबा मुझे शर्मिंदा मत करो, गलती तो मुझसे हुई है, आप लोगों को छोड़कर भाग आया। आज मेरे वालिदैन मेरे घर में हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन एक पछतावा जो मुझे आज तक है कि 20 साल जो मुझे अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए थी मैं इनसे दूर रहा। कि अब्बा को इस बात का पछतावा है कि मैंने अपने बेटे को समझने की कोशिश क्यों न की। वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से परेशान था और फेल हुआ था। मैं अपने बेटे को क्यों न जान पाया। रिश्तों में मजबूती तब ही होती है जब एक दूसरे को इंसान जान जाता है।